Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the federal system and all. Federal system में क्या देखा? The progressive development of the protective force continue under federalism. Man started using inanimate source of energy, that is water and wind. फिर बहुत ज़्यादा मशीनरीज आ गए, बहुत ज़्यादा नए नए इम्प्रूव टेक्निक्स आ गए, तो क्या है, पुराने वन क्या हो गए, पुराने आउटडेटेड हो गए. द लेबर ऑफ क्राफ्टमैन वॉज स्पेशलाइज, रेजिंग प्रोडक्टिविटी कंसिडरेबली. द डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन led to emergence of federal relation of production. This relation were based on the federal lords ownership of the serf or landless peasant. Nevertheless, this relation were more progressive than in slavery system. The force of production underwent changes due to new discoveries, increasing demand for consumption. और जब कंजप्शन बढ़ा तो क्या हो गया, जब कंजप्शन बढ़ रहा था तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, इसलिए डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट, लोगों को नया मार्केट ढूंढने लगा. एंड दिस न्यू मार्केट वो केम थ्रू द कॉलोनिज्म. All this led to the need and growth of mass scale manufacturer. This became possible due to advance in technology. This brought the unorganized labor at one place, that is the factory. This sparked off already sharpened class conflict, leading to peasant revolution against landowner. The new system of production demanded free labor, whereas the serf was tied to the land. Therefore, the new force of production also changed the relation of production, accumulating into change in the mode of production from federalism to capitalism. Then intensification of class conflict under capitalism. See, large scale machine production is a specific feature of the productive force of capitalism. Huge factories, plants and mines took place of artisans workshop. अब जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह थे, इसकी वजह से क्या हुए, छोटे छोटे आर्टिसंस के वर्कशॉप्स जो थे वो सब खत्म हो गए, राइट. देन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी तो क्या हुआ, कैपिटलिज्म भी बढ़ने लग गया, और क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा हो गया. सो अंडर कैपिटलिज्म क्या हो गया, द प्रोड्यूसर, द प्रोलेटियन इज लीगली फ्री. जो वर्किंग क्लास था, लेबर क्लास था, वो फ्रीली इधर उधर जा सकता था. बट फ्रीली का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीली का मतलब है, मतलब वो वर्किंग क्लास और लेबर तो लेबर ही रहेगा. ड्यू टू दिस द एक्सप्लॉयटेशन रिलेटिवली free labor became cautious of their class interest and organized themselves into a working class movement. This working class movement intensified the struggle against the bourgeois class. It begins with bargaining for better wages and working condition and working condition and all. Now moving towards the next point. Then class struggle. Class struggle में क्या देखा अपन ने, the theory of class struggle is central to Marxist thought. The first line of Communist Manifesto read, the history of all hetero-exist society is the history of class struggle. Free man and slave, participants and plebeians, lord and serf, guild master and journeyman, in a word, oppressed and oppressed stood in the constant opposition to one another, carried on uninterpreted, now hidden and now open fight. Not only the classes but also the class struggle is economically conditioned. Therefore, Marx says that economic relationship is the very basic of all other types of relationship, that is social, political and legal, and these are called the superstructure. Economic relationship decides, defines and determines all other forms of relationship, that is social, political and legal. This is what is called the concept of economic determined by Marx. Then cause of cost struggle क्या हो गया है, क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था. सो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड नॉट ओनली विद इन देयर ओन कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो क्या है, ये जो लेबर क्लास थे वो सारे एक साथ आए एंड दे
protested against this bourgeoisie. In capitalism, power, influence, and wealth of the capitalists have increased. Condition of the proletariat has become miserable. इससे क्या हो गया? The crisis will increase. The Communist Manifesto makes an appeal to the proletariat to unite to overthrow the capitalist socio-economic and political order. Next is the inevitable of destruction of capitalism. According to Marx, capitalism does contain the seed of self-destruction. According to Marx क्या है? Capitalism does contain the seed of self-destruction. Like capitalism अपना रहे हो तो आपको आपका डिस्ट्रक्शन पक्का चाहिए, आप खुद ही डिस्ट्रक्शंस को न्योता दे रहे हो. Large scale production and monopoly are the characteristic feature of capitalism. See, अगर आप कैपिटलिस्ट अपनाओगे तो क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, उसके साथ साथ क्या है? मोनोपोली भी आएगी. दिस लीड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू पर्सन. तो क्या है? वेल्थ क्या है? किसी एक के हाथ में ही बहुत ज़्यादा जाएगी. द फ्यू कैपिटलिस्ट बिकेम एक्सट्रीमली रिच. जो कुछ कैपिटलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए. Protestants are subjected to exploitation and became poorer and poorer. See? और ये जो लेबर क्लास था उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और वो क्या हो गया? गरीब से और गरीब बन गए थे. They will feel capitalism is the source of their misery and suffering. उनको क्या लगने लग गया है गरीब को, लेबर क्लास को? ये कैपिटलिज्म जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर मिस्ट्री एंड सफरिंग. इफ़ यू अगर आप कैपिटलिज्म अपना रहे हो, इसी की वजह से क्या है? वो गरीब होते जा रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें बढ़ रही है. द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सी, कैपिटलिज्म का क्या रहता है? एक ही एम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट कमाने का. whereas the interest of the working class lies in the enhancement of wages. See, और जो वर्किंग क्लास का क्या रहता है कि बाबा हमारी तनख्वाह बढ़े, कुछ तो बढ़े, कैसे तैसे बढ़े. दे ट्राई टू अर्न एज मच एज दे कैन. सो टेंशन इज क्रिएटेड बिटवीन दिस टू क्लास. सी, अब ये जो दो क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास में क्या है? दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, राइट. और ये जो वर्किंग क्लास है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस कमाना चाहते हैं ताकि उनका भी घर अच्छे से चले. अब दोनों के में टेंशन बढ़ गया क्योंकि दोनों क्लास कमाना ही चाहता है. इट जनरेट्स द फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द वर्कर. तो क्या हो गया? ऑल दिस जनरेटेड द फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द वर्कर. फाइनली when exploitation is heightened to the maximum and the misery and suffering of the industrial worker became unbearable under capitalism. See, अब क्या है? अब जो वर्कर का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो अभी हद से ज़्यादा हो गया था, राइट. अभी वो बहुत ही बदतर हो गया था. तो अब क्या हो गया है? अब इंडस्ट्रियल वर्कर क्या हो गए? अब उनकी सहन शक्ति के बाहर हो गया ये कैपिटलिज्म. प्रोलेस्टेंट will make to join appeal for a bloody revolution against the capitalism. See, ये जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो सबको अपील कर रहे हैं कि अपन सब एक साथ आते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट. दिस इज फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेस्टेंट डिक्टेटरशिप. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन. सी, अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन क्या चल रहा है यहाँ पे? सी, मार्क्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स द अकॉर्डिंग टू मार्क्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन. सी, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शंस, ये दिस आर द मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन. प्रॉपर कॉन्शियसनेस अमंग द वर्कर्स create an atmosphere conducive to revolution. See, proper consciousness among the workers. See, workers क्या हो गए? अभी proper conscious हो गए and it क्या एक atmosphere, ऐसे कभी भी revolution हो सकता है, ऐसा atmosphere बन गया क्योंकि workers क्या थे? they became aware कि उनका कितना ज़्यादा exploitation हो रहा है और किस हद तक उनको exploit किया जा रहा है. तो वर्कर अभी अवेयर हो गए, तो अभी कभी भी रिवॉल्यूशन हो सकता है
ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया. कॉन्शियसनेस about their position, about the utility of struggle in this matter, ideology will play the important role. See, अब कॉन्शियसनेस किस में हो गया? अबाउट their पोजिशन. मतलब वो इतना काम कर रहे हैं फिर भी उनके पोजिशन क्या है? नथिंग. तो दे बिकेम अवेयर, दे बिकेम कॉन्शियस अबाउट their पोजिशन, about the utility of struggle in this matter, ideology will play the important role. It makes the people conscious. See, अब लोग क्या हो गए? Now the working class became more conscious. According to Marx, existence of contradiction and consciousness is very much vital for revolution. Revolution क्यों हो रहा है यहाँ पे? Because the workers have become conscious. और contradiction भी चल रहा है. People must be mentally prepared to make any sacrifice for success of revolution. So ये जो working class है, ये जो labor class है, they should be ready for any sacrifice. मतलब वो कुछ भी sacrifice करने को ready रहनी चाहिए for the revolution. If you want your revolution to be successful, so you should do whatever it is necessary. Hence, Marx makes appeal to the worker of the world to unite as they have nothing to lose but their scalpels and have a world to win. तो मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स मेक्स एन अपील टू द वर्कर. वो वर्कर्स को अपील कर रहा है, नॉट ओनली ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री बट ऑफ द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स को ही इज मेकिंग एन अपील कि यू ऑल कम टुगेदर. इफ यू ऑल कम टुगेदर यू कैन विन द होल वर्ल्ड. राइट, आपको हारने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, बट आप सब अगर साथ में आओगे तो पक्का अपन पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं. Thus, Marx will help of this ideology try to bring mental preparedness in the workers. Thus, Marx क्या है? Marx with the help of this ideology, Marx उसकी ये ideology के साथ he is trying to prepare mentally the workers. He calls them for the program of revolutionary action. See, he is calling them for the revolutionary action. He is making the workers, is making the labor class appeal, come and we'll go for the revolutionary action. Then moving towards the next point, that is the criticism. Marxian theory of class struggle has been put to various criticism. See, ये जो मार्क्सियन की theory of class struggle है, it has been put to criticism. मतलब उसके अंदर बहुत सारे drawbacks भी है. This theory is having propaganda value. The theory of revolution that Marx present on the basis of the conflict of interest between the social classes is not convincing. जो ये मार्क्स ने जो थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, उसने जिस हिसाब से प्रेजेंट की है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन द सोशल क्लास एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है. जो रीज़न वो बोल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है. देयर में भी रिवॉल्यूशन ड्यू टू कॉज अदर देन दिस. सी, सिर्फ वेजेस को लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके ही रिवॉल्यूशन होना ज़रूरी है क्या? नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर माइट बी मैनी अदर रीजन्स जो विच कैन लीड टू अ रिवॉल्यूशन, एंड द सेम वे में इन्वॉल्व फोर्स और वायलेंस. और उसी तरह क्या है, इट कैन लीड टू अ वायलेंस ऑल्सो. Second point is the technological revolution of 18th and 19th century. The constitutional changes in the 19th century England, Arya Samaj movement of Dayanand Saraswati are illustration of the revolutionary changes brought about the respective areas without the use of force. See, the abolition of caste system by the legislative measure is no less revolutionary. See, now what has been said here, जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट वाज इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, स्पेशली इन द 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ था. ये अपन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अपन ने पढ़ा था. आई थिंक हिस्ट्री में वी स्टडीड इन हिस्ट्री इन FY BA एंड ऑल. मतलब किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, ये सब अपन ने पढ़ा था. और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतनी तेज़ी से इंग्लैंड में बढ़ रहा था, लाइक हर कोई कंपटीशन में उतर के
दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड मशीनरी के वजह से दे हैड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन 4 टाइम्स. लाइक पहले लेबर वगैरह यूज़ करके दे यूज्ड टू डू प्रोडक्शन. जो लेबर एक दिन में अगर 10 कपड़े 10 शर्ट स्टिच करते थे तो वही मशीन से कम टाइम में 40 से 50 शर्ट स्टिच हो रहे थे. तो अभी उसके लिए उनको क्या चाहिए था, दे नीडेड अ मार्केट, सो दे यूज द कॉलोनीज एज देयर मार्केट एंड ऑल. तो ये जो इन द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ था इन द 18th एंड इन द 19th सेंचुरी, इट हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड. फिर आर्य समाज मूवमेंट ऑफ दयानंद सरस्वती, ये एग्जाम्पल है ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंजेस के, जो उस रिस्पेक्टिव एरियाज में वगैरह आए थे. विदाउट यूजिंग ऑफ फोर्स, सी बिना कुछ फोर्स किए, without using any force, without having any bloodshed, there was a revolution. Then there was another change, that is the abolition of caste system by the legislative measures in no less revolutionary. See, एक और क्या था, the abolition of caste system. पहले कास्ट सिस्टम बहुत था इंडिया में, लाइक अपर क्लास, लाइक अगर नीचे जाति के लोग सामने भी आ जाते थे या फिर उनको टच भी करते थे तो लोग घर जाके नहा के आते थे. मतलब इतना कास्ट सिस्टम था पहले इंडिया में. तो ये कास्ट सिस्टम भी अबॉलिश कर चुके थे. मार्क्स हैज़ मेड मेनी प्रेडिक्शंस in regard to the development of the future capitalist society, especially in regard to its relation with the proletariat and about the inevitable struggle between the capitalist and the proletariat has not come off. Marx has made many predictions. Marx ने क्या किए, बहुत सारे predictions बनाए in regard to the development of the future capitalist society. Like आगे सोसाइटी ऐसे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसे बनेगी. आज अगर स्ट्रगल नहीं किया तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी. इसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस बनाए थे, स्पेशली इन रिगार्ड टू इट्स रिलेशन विद द प्रोलेस्टियन एंड अबाउट द इनएविटेबल स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलेस्टियन हैज़ नॉट कम ऑफ. अब ये किसके बारे में बोल रहा है, रिलेशन विद द प्रोलेस्टियन एंड अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट. इसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस बनाए हैं. मार्क्स हैज़ इग्नोर्ड सोशल कंडीशन. मार्क्स ने क्या किया है, ही हैज़ completely ignored the social condition. He has failed to distinguish between the social and economic classes. See, अपन ने इतना मार्क्स के बारे में पढ़ा, उसकी इतनी थेरीज के बारे में पढ़ा, आपने किधर तो देखा उसने डिस्टिंग्विश किया है बिटवीन द सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास में? नहीं. सो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है वेयर ही फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोशल एंड द इकोनॉमिक क्लासेस. It has been said that it is not correct to believe that all the struggle is always a class struggle. See, अभी इतना सब सुन के आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो भी स्ट्रगल चल रहा है इट इज़ ऑल अबाउट द क्लास स्ट्रगल. बट ये है क्या सही बात? हमेशा क्लास स्ट्रगल ही होना ज़रूरी है क्या? देयर माइट बी अदर स्ट्रगल ऑल्सो. बहुत से और दूसरे का रीजन्स भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लास स्ट्रगल. बट मार्क्स ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है. इट हैज़ बीन सेड दैट it is not correct to believe that all struggle is always a class struggle. It has not followed the nature of struggle. See, it has not followed the nature of struggle. मतलब ये बाकी दूसरे नेचर रीज़न भी हो सकते हैं, तो वो उसने कंसिडर किया ही नहीं है यहाँ पे. The concept of alienation of individual from a social system is a complete ambiguity. See, the concept of alienation of individual the social system, ये क्या है? ये complete ambiguity है, मतलब just as in question mark है. Marx sociology reduce him to mere zero. See, Marx की जो sociology है it has reduced him to mere zero. There is however no change in his position. See, यहाँ पे change है क्या उसकी position में? कुछ नहीं है. There is no change in the position. Karl Marx leaves him as much hand and foot bound in his system as he found him under the established one.
सी कार्ल मार्क्स क्या है, lives in as much hand and foot bound in the system as he found him under the established one. The hope of achieving the total man is thus completely lost. See, ये जो होप रहती है कि बाबा एक अच्छा इंसान बनना है एंड ऑल, दैट इज कम्प्लीटली लॉस्ट ओवर हियर. मैक्स वेबर कंसिडर्ड द फिलोसॉफी ऑफ मार्क्स एज फॉल्स. सी, ये जो मैक्स वेबर है, व्हाट ही सेज, ये जो फिलोसॉफी ऑफ मैक्स है ये कम्प्लीटली गलत है, बिकॉज इट इज़ इनकम्पिटेबल विद बोथ द नेचर ऑफ साइंस एंड नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. क्यों इनकम्प्लीट बोल रहा है मैक्स वेबर? क्योंकि ये कम्प्लीटली अलग है अबाउट ये नेचर ऑफ साइंस से एंड नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से. दोनों से मार्क्स की थ्योरी कम्प्लीटली अलग है. मैक्स वेबर डज नॉट सपोर्ट दैट ओनली इकोनॉमिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. मैक्स वेबर डज नॉट सपोर्ट दैट. मैक्स वेबर इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता. सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर जो आप देख रहे हो, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. Marxian concept of classless society remains only as a political instrument in the hands of communist. See, Marxian concept. See, मार्क्स क्या बोल रहे हैं, अगर अपन कोई सिस्टम ऐसा अपना है जिससे क्या है अपने पास क्लासलेस सोसाइटी बने, बट एक्चुअल में क्लासलेस सोसाइटी ये कंसेप्ट एक्चुअल में यूज़ करना इट इज़ म्योरली एन इम्पॉसिबल टास्क. सो मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ classless society remains only a political instrument in the hands of the communities. This concept is being misused for gaining political benefits. See, ये जो concept है it has been misused, मतलब गलत तरीके से यूज़ किया है ताकि political benefit मिल सके लोगों को. It is thus reduced to the level of a tool of political propaganda. मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपागेंडा टूल बोल के यूज़ किया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लासलेस सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ इथोपिया ड्रीम. सी, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लासलेस सोसाइटी सिर्फ ये एक सपना ही है और ये सपना ही बन के रहेगा. बोर्गेस सेज मार्क्सियन कम्युनिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्लेटोस कम्युनिस्ट एंड मोरिस इथोपियानिज्म. मार्क्सिज्म कम्युनिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट है? मार्क्सियन कम्युनिज्म इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्लेटोस कम्युनिज्म एंड मोरिस इथोपियानिज्म. इन स्पाइट ऑफ द अबव क्राइटिज्म शॉर्टकमिंग्स. सी, इन स्पाइट ऑफ अबव क्राइटिज्म, सी भले इस थ्योरी के बहुत से क्राइटिज्म से बहुत से शॉर्टकमिंग्स हैं, द थ्योरी ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी, class and class struggle has had a tremendous appeal to the people with the sense of social justice. See, भले ये थ्योरी के बहुत से शॉर्टकमिंग्स हैं और बहुत से क्राइटिज्म है, बट स्टिल दिस थ्योरी हैज़ प्लेड एन वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, लाइक अबाउट द क्रिएटिंग सम क्लासलेस सोसाइटी, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. इन सब से लोगों के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है एंड इट हैड मेड अ ट्रेमेंडस अपील टू द पीपल विद द सेंस ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस के नाम पे लोगों पे बहुत अच्छा अपील गया है ये. देन I think we'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying about the Marxian state. That would be our new topic. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.